Good morning. Myself Om Shankar Yadav, Assistant Professor Agronomy. Our topic is problems of crop production in dry land. The land degradation in rainfed area is related to from climatic variation and unplanned over exploitation of resources by human activity and increased pressure of human and livestock population. It becomes unavailable to cultivate even marginal lands. The partial land are degraded due to overgrazing caused by both increase in livestock population and decrease in area under grazing due to encouragement for cultivation and urbanization. As a result, more and more forests are being used to grazing purpose. Nearly 70% rainfall area is affected by wind erosion and sand deposition. Out of estimation of 142 million hectare net cultivated area, about 86 million means 60% is rainfed. Even after reaching the full irrigation potential, nearly 50% of cultivated area will remain rainfed. At present, about 60% of India population and 60% livestock depends on agriculture, and by 2025 AD, it is likely to reduce 40% due to continuous migration of rural people to semi-urban and urban areas. The average land holding is likely to be 0.08 hectare from the present 0.15 hectare, which would be uneconomically for farming. Rainfed farming are economically weak and little ability to withstand risk. Out of the 97 million farm holding, 76% are small farmers. Most of the cropping in the arid and semi-arid region continue to be under rainfed condition. A majority of the farmers are small farmers with marginal resources. Farmers small है and resources are marginal. The poor resources based on permitted only low input subsistence farming with low unstable crop yield. The low productivity of agriculture in dryland farming region is due to cumulative effect of many constraints for crop production. The constraints can be broadly grouped in climatic constraints, soil related constraints, traditional cultivation practices, heavy weed problems, lack of suitable varieties, and social economic constraints. Among the first is climatic constraints. Rainfall characteristic. In climate, the rainfall is the most important factor. Among the different climatic parameters, rainfall is an important factor influencing the crop production in dry regions. The variable rainfall. In rainfall, the variable rainfall are varies both in time and space dimension. Timely annual rainfall vary great from year to year, and naturally its coefficient of variation is very high. General high, the rainfall less than the coefficient of variation. In other words, crop failure due to uncertain rain are more frequent in regions with lesser rainfall. The average annual rainfall of India is 1192 मिलीमीटर 1192 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है, वेयर एज इन आंध्र प्रदेश इज 89 million hectare. Based on the average annual rainfall, the India can be divided into 4 zones. More than 1/3 of the total geographic area in India received rainfall less than 750 millimeters. यानी जो ड्राई रीजन एरिया है वो 750 मिलीमीटर रेनफॉल से कम रेनफॉल रिसीव करता है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया इनटू डिफरेंट जोन बेस्ड ऑन रेनफॉल इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन. दूसरा है रेनफॉल की इंटेंसिटी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन. इन जनरल मोर देन 50% ऑफ टोटल रेनफॉल इज यूजुअली रिसीव्ड इन 3 to 5 रेनी डेज. सच इंटेंसिव रेनफॉल रिजल्ट ऑफ सब्सटेंशियल लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू सरफेस रन ऑफ. ज़्यादा बरसात होती है एक साथ 3 से 5 दिन में, तो पानी बह करके चला जाता है. दिस प्रोसेस आल्सो एसिलेटेड सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन को बढ़ाता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग दी crop growing season is more important than total rainfall in dry agriculture.
जो टोटल रेनफॉल होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए। 3 से 4 महीने में बरसात होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। एवरेशन ऑफ वेरिएशन इन मानसून बिहेवियर, मानसून का बिहेवियर इरेगुलर होता है। कई टाइम लेट ऑनसेट ऑफ मानसून, अर्ली विद्रावेट ऑफ मानसून एंड prolonged dry spells in monsoon period. Major problem are monsoon related problems and the high atmospheric temperature. In a dryland agriculture area, temperature is high. Because of high temperature, atmospheric temperature, the atmospheric demand for moisture increase, causing high evapotranspiration losses resulting in moisture stress, और उससे moisture stress हो जाती है। रोल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बहुत कम रहती है जिससे ईटी लॉसेज ज़्यादा होता है। एंड हॉट ड्राई विंड्स, विंड हमेशा स्पीड ज़्यादा रहती है और हॉट होती है, तो वो डिमांड ऑफ वाटर इज इंक्रीज। हाई एटमॉस्फेरिक वाटर डिमांड, ड्यू टू दी हाई एटमॉस्फेरिक वाटर डिमांड द पोटेंशियल इवपोट्रांसपायरेशन एक्सीड द प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर। जो इवपोट्रांसपायरेशन होता है वो प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा हो जाता है, बरसात होती है उससे ज़्यादा इवपोट्रांसपायरेशन हो जाता है और वाटर स्केर्सिटी इन क्रॉप्स हो जाती है। दूसरा है सॉइल रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स, सॉइल से संबंधित समस्याएं। द डिफरेंट सॉइल ग्रुप एनकोरेटेड इन ड्राईलैंड एरियाज आर ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल। द कंस्ट्रेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन आर डिफरेंट इन डिफरेंट सॉइल ग्रुप्स। द प्रीडोमिनेंट सॉइल ग्रुप एलुवियल पर the problem for crop production are not so acute as in red and black soil. रेड और ब्लैक soil में समस्याएं ज़्यादा होती है। तो the different soil constraint crop production are inadequate soil moisture availability. soil में सबसे बड़ी समस्या होती है मॉइस्चर की कमी। The moisture holding capacity of soil in dry region is low due to shallow depth, especially in LP soil. LP soil जो रेड soil होती है उसकी डेप्थ कम होती है, तो मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी उसकी कम होती है। रो रेनफॉल एंड रो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, और उसमें ड्राईलैंड एरिया में रेनफॉल कम होती है और उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होते हैं। जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है हाई टेम्परेचर के कारण डिग्रेडेड जल्दी से हो जाता है, इसलिए उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। पुअर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज मोस्ट ऑफ द सॉइल अंडर ड्राईलैंड कंडीशन इज वेरी लो, less than 1% due to high temperature and low additional of organic manures. टेम्परेचर हाई रहता है, जल्दी से डिकम्पोज करके नष्ट हो जाता है। पुअर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट एडवर्सली अफेक्ट सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मॉइस्चर स्टोरेज, और उसकी सॉइल की स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। पुअर सॉइल फर्टिलिटी, जब ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो उसकी फर्टिलिटी कम होगी, तो क्रॉप ग्रोथ धीरे होगी। Due to the low accumulation of organic matter and loss of fertile topsoil by soil erosion, the dryland soil are poor in fertility stature. Most of the dryland soils are deficient in nitrogen and zinc. Nitrogen are mobile nutrients which are lost by high temperature and high rainfall both. Soil deterioration due to erosion, wind erosion or water erosion. In India, nearly 175 million hectare of land is subjected to different land degradation. Among them, the soil erosion is very predominant. The erosion caused loss of top fertile soil, leaving poor subsoil for crop cultivation. यानी फर्टाइल सोइल होती है वो इरोजन के द्वारा लॉस्ट हो जाती है। सोइल क्रस्ट प्रॉब्लम, मोस्टली इन रेड सोइल क्रस्टिंग प्रॉब्लम हो जाती है। इन केस ऑफ रेड सोइल, द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड सरफेस सोइल लेयर हिंडर द इमर्जेंस ऑफ सीडलिंग विच ultimately affect the plant population. Crusting of soil surface after rain reduce infiltration and storage of rainfall due to high runoff. तो उसमें एक तो जर्मिनेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, दूसरा क्रस्टिंग होने से इनफिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है और वाटर है वो रन ऑफ हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ हार्ड लेयर एंड डीप क्रेक्स, जो सॉइल्स होती है उसमें हार्ड लेयर होती है जो वाटर के परकोलेशन को करती है और डीप क्रैक्स हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ हार्ड लेयर इन सॉइल एंड डीप क्रैक्स अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन स्पेशली इन केस ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में ये प्रॉब्लम होती है, रेड सॉइल में क्रस्टिंग प्रॉब्लम होती है। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेज, द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज अडेप्टेड बाय द फार्मर्स आर
evolved based on long-term experience by the farmers. The traditional management practices are plowing along the slope के अकॉर्डिंग उसमें प्लोइंग करते हैं. ब्रॉडकास्टिंग सीड सोविंग बिहाइंड द कंट्री प्लाउ लीडिंग टू पुअर एज वेल एज अनइवन प्लांट स्टैंड. जो सोविंग मेथड है वो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, या जो देसी प्लाउ है उसके पीछे करते हैं, जो सही नहीं है. मानसून सोविंग, मानसून होने पे ही उसमें सोविंग की जाती है. चॉइस ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन रेनफॉल, रेनफॉल के अकॉर्डिंग क्रॉप की चॉइस करते हैं. ज़्यादा रेनफॉल होगी अधिक वाटर चाहने वाले क्रॉप्स करते हैं, और कम बरसात होगी तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स अपन चूज करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ FIM इन लिमिटेड क्वांटिटी, FIM जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो कम मात्रा में अप्लाई करते हैं. हैंड वीडिंग, वीडिंग जो होती है, वीड प्रॉब्लम्स होती है उसमें हैंड वीडिंग की जाती है, जिससे लंबे समय तक वीड्स खेत में रहते हैं और वो वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लेते हैं. मिक्स्ड क्रॉपिंग, 2-3 क्रॉप्स मिक्स करके बोते हैं ये ड्राई लैंड फार्मिंग में. यूज ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ हार्वेस्टिंग, जो कन्वेंशनल सिस्टम है पुराने सिस्टम उसी से हार्वेस्टिंग की जाती है, न्यू टेक्निक्स उसमें यूज नहीं करते हैं. ट्रेडिशनल स्टोरेज सिस्टम, और क्रॉप को जो स्टोरेज करते हैं वो भी ट्रेडिशनल मेथड के आधार पर करते हैं, जिससे कि उसमें लॉस ज़्यादा होता है. हैवी वीड इन्फेस्टेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें वीड इन्फेस्टेशन ज़्यादा होता है, जो मॉइस्चर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दिस इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन ड्राईलैंड एरिया. अनफॉर्चुनेटली द इन्वायरमेंट congenial for crop grown is also congenial for weed growth. Weed seed germinate earlier than crop seed and try to suppress the crop growth. The weed problem is highly rain-fed area because of continuous rain and acute storage of labor. लेबर की कमी होती है, और जो वीड्स होते हैं वो रेगुलर ग्रोथ कर लेते हैं, तो वो क्रॉप को कंप्यूट कर जाते हैं. The weed suppression in the early stage of the crop growth is required to reduce the decrease in crop yield. प्रारंभिक अवस्था में जब क्रॉप की ग्रोथ करने की अवस्था होती है तो वो वीड से ढकी रहती है, तो उसमें यील्ड कैपेसिटी कम हो जाती है. लैक ऑफ सूटेबल वेराइटीज़, ड्राईलैंड एरिया में सूटेबल वेराइटीज़ का उपयोग बहुत कम करते हैं. मोस्ट ऑफ द क्रॉप वेराइटीज़ अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन इन ड्राईलैंड एरिया आर meant for irrigated area. There are no specially varieties exclusively meant to dryland area. कोई स्पेसिफिक वेराइटियाँ डेवलप नहीं हुई है अभी तो हो चुकी है. Hence still more efforts are required to develop varieties in different crops exclusively meant for dryland agriculture. Socio-economic constraints, socio-economic constraint भी होते हैं. The economic constraint of dryland farmers is very पुअर बिकॉज लेस एसेस टू इनपुट की कमी होती है. फार्मर्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो उसमें हाई इन्वेस्ट कर सके. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन टाइम्स, अनसर्टेनिटी के कारण उसमें क्रेडिट टाइम पे नहीं मिल पाता है. रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, और रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है कि मानसून पे डिपेंड होती है. मानसून अच्छा होगा तो अच्छी क्रॉप हो जाएगी, मानसून अच्छा नहीं होगा तो अच्छी नहीं होगी. इस रिस्क के कारण उसमें इन्वेस्टमेंट कम किया जाता है. ड्राईलैंड फार्मर इज वेरी लो, हेंस दी ड्राईलैंड फार्मर रिसोर्ट टू लो इनपुट एग्रीकल्चर विच रिजल्ट इन पुअर यील्ड. तो इसमें पुअर यील्ड ही मिलती है. मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब ड्राईलैंड फार्मिंग में यील्ड को बढ़ाने के लिए नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनका मैनेजमेंट एसेंशियल होता है. द नेशनल रिसोर्सेज दैट आर to be managed on sustainable basis are soil, water, vegetation and climate. इनका मैनेजमेंट करते हैं. सॉइल को, सॉइल वाटर है, वेजिटेशन है एंड क्लाइमेट है. इन इंडिया इज बिलीज दी वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लैंड, वाटर, vegetation and climate, but the poor quality of life. They can manage by characterize and development of suitable land use plan for each agroecological रीजन इन दी कंट्री. प्रत्येक इकोलॉजिकल जो क्लाइमेटिक जोन है उनमें अलग अलग क्रॉप ग्रोइंग प्लान्स बनाए जाते हैं. सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेज डेवलप की जाती है. इंटीग्रेटेड सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज अडॉप्ट की जाती है. इंटर बेसिन ट्रांसफर ऑफ सरफेस फ्लो विच इज अदरवाइज गोइंग एज वास्ट फॉर सीज एंड ओक्यूज.
पानी जो बह करके जाता है, रन ऑफ वाटर है, उसको कंट्रोल किया जाता है और उसको इंटरफ्लो ट्रांसफ़र किया जाता है। क्रिएशन ऑफ लाइव स्टोरेज ऑफ वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग रिजर्वायर्स, वाटर हार्वेस्टिंग उसमें मेनली की जाती है। जो रन ऑफ वाटर है उसको हार्वेस्ट किया जाता है और आने वाले समय में इरिगेशन के काम में लिया जाता है। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर सोर्सेज, ग्राउंड वाटर लेवल को भी बढ़ाते हैं और जो सरफेस वाटर है उसको भी स्टोर करते हैं जो फार्मिंग के काम में आ सके। ऑन फार्म इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट टू एनहांस वाटर यूज एफिशिएंसी, और जो वाटर है इरिगेशन के लिए उसको एफिशिएंटली यूज करते हैं। दिस इज द एंड टॉपिक।